Hello everyone, welcome to my channel. I'm Dr. Ritik Durgar and I have completed my MBBS from Grant Government Medical College. And currently I'm pursuing my DNB Medicine residency. So in this video, I'm going to talk about how to clear your NEET for undergraduation in first attempt. So I gave my NEET exam in 2017 along with my 12 boards. And I got a 623 marks out of 720 and my All India rank was 998. So back in the days, 623 was really good. And if I'm not wrong, probably these days you get around 7 to 10,000 rank at 623. Yes, so from my experiences, mistakes and learning along the way, in this video I'm going to share top 5 strategies or tips that will help you to clear NEET in first attempt. So first one is read your notes the very same day you make it. So what happens is that it helps you to understand the concept better because you remember in what context teacher said something or why you wrote something in the corner of a page the very same day. For example, many times it happens with all of us and probably आपके साथ भी हुआ होगा that we understand some solution in the classroom and then we open our notes after 2-3 days and we are stuck like कैसे solve किया था despite the fact that we understood that. Secondly, it also saves you a lot of time. अगर आप नोट्स को उसी दिन पढ़ेंगे ना, आप काफी कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे कंपैरेटिवली अगर आप उसको कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे आपको रिवाइज करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा. Strategies keep short term goals. So you cannot target NEET directly because you will not be able to keep up with the motivation. So have short term goals. Otherwise you will get distracted easily. You will be able to justify your excuses by saying that अभी तो बहुत टाइम है यार. So for example, I always targeted my fortnightly or monthly test, like which is conducted by every coaching institute in whichever coaching institute you are, and I used to take those tests very seriously. And the benefit of taking it seriously is that first you learn to handle the pressure well. Secondly, when you score good in your weekly or monthly test, like it will help you to build your confidence, which is very important. And generally ये जो fortnightly और monthly tests होते हैं इनमें current topics आते हैं, like जो टॉपिक अभी करंटली क्लासरूम में चल रहा है एंड ये बेस्ट टाइम है उनको मास्टर करने का फॉर एंड बाय टारगेटिंग दोस टेस्ट यू विल बी एबल टू पुश योरसेल्फ टू मास्टर दैट चैप्टर और दैट पोर्शन व्हिच इज कमिंग इन दैट टेस्ट एंड डूइंग सो ईच एंड एवरी टेस्ट यू विल बी एबल टू बिल्ड कॉन्सेप्ट अलोंग विद द जर्नी. व्हाट हैपेंस कि बाद में आपको रिवाइज करने का टाइम मिलेगा. कॉन्सेप्ट जब क्लासरूम में जो टॉपिक चल रहा है कॉन्सेप्ट उसी टाइम आप बिल्ड कर. सो And third important strategy is biology NCERT should be on your fingertips. So biology पढ़ना है ये सबको पता है, but biology NCERT को किस तरीके से पढ़ना है it's very tricky. Like हम generally read कर लेते हैं and then उसके बाद इधर उधर के question solve करते हैं. तो उससे ज़्यादा important है कि आप biology NCERT को बहुत डिटेल में पढ़ें. Like you have to emphasize on each and every word, each and every picture, each and everything written below the picture. And आपको एक मैप मतलब एक रोड मैप होना चाहिए आपके एनसीईआरटी का हर पेज का. उस पेज में एनसीईआरटी में बहुत स्पेसेस रहता है तो वो जो पेज है उस पेज के कॉन्टेक्स्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे वो आप साइड में लिख सकते हैं which will help you for quick revision. एंड दूसरी बात, बायोलॉजी को आपको कंटिन्यूअस रिविजन में रखना है. ऐसा नहीं कि अभी ये टेस्ट में ये टॉपिक आ रहा है मैंने ये याद किया एंड देन अब जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं रिवाइज करूंगा. So you have to have a continuous revision of biology. मतलब कि आपको हर एक पॉइंट पे आपका बायोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए जो पहले कवर हो चुका है. Because उससे क्या होता है जब आप फुल सिलेबस टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर अचानक शूट करेगा. Why? Because आपने बायोलॉजी कंटिन्यूअस रिविजन में रखा था एंड देन जब वो सब कुछ साथ कंबाइन हो गया आपका प्रिसिजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. Strategy is how to deal with question. So I made a huge mistake in my journey while solving questions. The thing was that I did not like solving MCQ again. So मैं क्या करता था हर बार कहीं ना कहीं से कुछ भी सॉल्व करता था डिफरेंट क्वेश्चन. पता नहीं इस चक्कर में फालतू में मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए जो शायद एग्जाम में आते भी नहीं है. एंड जब फाइनल एग्जाम था नीट का उस दिन मेरे कुछ क्वेश्चंस जो कि लिटरली मॉड्यूल से थे वो भी मेरे गलत हो गए जस्ट बिकॉज मैंने कभी मॉड्यूल्स के क्वेश्चन को मतलब अपने रेगुलर टेस्ट के बाद कभी दोबारा सॉल्व नहीं किया था. So I would say कि पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है. So what you really need to focus on in QBank is your modules जो आपकी कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो टेस्ट दे रहे हैं आप
लास्ट में उन सारे क्वेश्चंस को आप दोबारा कर लीजिए, आपके पास टाइम है। एंड इफ यू आर समवन उसके बाद आप बहुत हाई लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। अदरवाइज आई थिंक सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करना ज्यादा बेटर है इधर उधर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से। आई हैव सीन दिस ट्रेंड, आई डोंट नो इफ इट इज स्टिल देयर, बट जनरली लोग बायोलॉजी में क्वेश्चन कम सॉल्व करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्व करने, आई नो क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट देयर। यहाँ पर आप रीड करके, आप मेमोराइज करके आपका प्रिपरेशन हो सकता है, बट ट्राई सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चन इन बायोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज क्वेश्चन फ्रेम किस तरीके से हो रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करवाना चाहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट में। एंड स्पेशली अभी के ट्रेंड में जिस तरीके का कट ऑफ है, यू कैन नॉट अफोर्ड अ सिली मिस्टेक। Fifth important strategy is do not leave any topic or subject. Like in our time, people used to say कि अभी physics में 70 to 80 marks ले आते हैं and let's prepare chemistry and biology really well. But you cannot do that because अभी nowadays thousands of students are scoring really well in all the 3 subjects. तो टॉपिक जो आपने पढ़ा, जो बहुत एक्सटेंसिव था, जिसको आपने काफी टाइम भी दिया, बट उससे क्वेश्चन शायद इतना डिफिकल्ट आए जो एनी वे आपसे ना हो पाए। और एट द सेम टाइम हो सकता है जो टॉपिक आपने छोड़ दिया उससे बहुत इजी क्वेश्चन आए, और मे बी आप अगर उसे 5 मिनट भी दिए होते तो शायद वो क्वेश्चन आप कर पाते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट लीव एनी टॉपिक कंप्लीटली। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विश that you get to start your roller coaster journey of MBBS as soon as possible. Thank you for watching. I'll keep posting such videos, so please like, share and subscribe to my channel. Until then, thank you.